Hello guys, I am Jayant Nahata. I have secured rank 56 in this attempt, CSE 2020. So guys, I had cleared UPSC in last year attempt also with a rank of 298. This was my third attempt. I have graduated, I am from Delhi and I did my graduation from IIT Delhi, BTech and MTech in Biochemical Engineering and Biotechnology. And I passed from IIT in 2018 and I gave my attempt alongside passing out IIT because I had been studying even before graduating. So I started somewhat around 2016-17. I just did coaching. I just attended 2 hours of classes so that just to give me a head start when I was not even clear that I wanted to appear for UPSC. I just had interest in studying and reading a lot, and I thought that UPSC will give me a structured approach to reading. That was one of my initial motivations. But then I was fortunate enough to get General Secretary of IIT Delhi's Student Affairs Council position. So through that position I realized that this is what I intend to do. मुझे यही करना है, मुझे IAS जैसा ही कुछ काम करना है. इट वॉज जर्नलिस्ट इन नेचर बट इतना सारा डोमेन्स टच कर सकते हैं वो मुझे उस 4th ईयर में रियलाइज़ हुआ अपनी जनरल सेक्रेटरी के टेन्योर में. और फिर मैंने और भी कई इंटर्न्स करी थी अपने कॉलेज में जिससे मैंने अपने बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करे. सो बाय द टाइम आई वॉज इन 4th and 5th ईयर आई वॉज श्योर आई वॉन्टेड टू गिव UPSC and I had started preparing seriously also. 5th year में I got time and so 2018 was my good first serious attempt. Although मेरा optional का preparation was really not good because I couldn't attend उसका coaching अच्छे से. But anyhow I gave 2018 का prelims and I cleared it. I was confident in prelims because I gave a number of tests along with other people around me and my friends. And उसमें mocks में अच्छे number आ रहे थे. So I was confident and I cleared it. Welcome to Lukman IAS. The Public Administration Foundation live online classes are as effective as offline classes. Study public administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories, and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay, and optional, for which one does not have a better choice than Lukman IAS. So, contact us today for more information. तो 4th और 5th ईयर तक मैं सीरियस हो गया था अपनी प्रेपरेशन के और मैंने 2018 का जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो प्रीलिम सेंस से आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट. मेंस में भी GS कंटेंट वाइज आई हैड कवर्ड सफिशिएंट बिट बट आंसर राइटिंग इतनी नहीं कर पाया था बिकॉज आई वाज इन कॉलेज 5th ईयर में. बट स्टिल आई गेव एंड प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया 2018 वाला. आई सिक्योर्ड 107 marks around in GS1 which was above the cutoff with a good margin I guess, with a decent margin. And फिर उसके बाद after prelims जो clear हुआ उसके बाद जो 3.5 months होते हैं उसके अंदर I did almost 3 out of 4 sections of my optional खुद से because I was not able to attend coaching and somehow वो manage हुआ and I gave my mains and और उसमें I just missed my mains cut off by 14 marks, but I was pretty sure that I will not be able to clear it. So
मैंने जैसे ही अक्टूबर में एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ, आई जस्ट स्टार्टेड अगैन विदाउट एनी मच ब्रेक. फ्रॉम मिड अक्टूबर आई स्टार्टेड अगैन फॉर माई नेक्स्ट अटैम्प्ट CSE 2019. एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैंने रियलाइज़ किया कौन कौन सी चीज़ें मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाया था, विच वॉज ऑप्शनल, विच वॉज आंसर राइटिंग फॉर मी. सो आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दीज. नवंबर, दिसंबर आई डिड आंसर राइटिंग, जनवरी तक, एंड फरवरी में भी कुछ थोड़े पेपर्स लगाए थे. एंड फिर फरवरी से मैं वापस प्रीलिम्स मोड में आ गया था. एंड फिर उसके बाद आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड मेंस भी मेरा अच्छा गया था. आई वाज pretty confident, and finally interview भी I got PK Joshi sir's board, and it was on July 24th, like last year 2020, and it went well, and I secured 298 rank. फिर after 2019, since I had given 2 attempts, it's a little unconventional. I was thinking that what should I do between October and my interview. So October 2019 and my interview, so I went to Mumbai and did a startup also. Went for a startup, 2-3 months I did, and then I realized I got the call for interview, so I just came back, gave the interview, and then secured 298 rank. So that was a little different, but it was also a nice add-on, and उससे मेरा थोड़ा बोरियत जो होता है एग्ज़ाम में, या जो एक जो लोग क्लोज्ड फील करते हैं पूरे प्रोसेस में, वो उससे थोड़ा मैं बाहर निकल पाया. फिर 2020 का एग्ज़ाम मेरा, फिर वही मैंने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करी. एवरी पेपर बाय पेपर विच एरियाज आई डिड नॉट स्कोर वेल इन 2019, आई फिगर्ड इट आउट. जैसे GS1 वॉज रियली गुड इन 2019 फॉर मी, 111 मार्क्स आए थे. तो आई रियलाइज कि आई हैव टू स्टिक टू माई स्ट्रैटेजी, एंड आई गो ऑन विद द GS by GS डिविजन अभी. बट overall तो I worked on my mistakes, and interview का preparation, because it worked for me in 2019, I maintained the same. And finally exam में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था मेरे से GS1 के पेपर्स में, और थोड़ा ऑप्शनल के पेपर्स में, और essay का एक. and I was not that hopeful, but since I was giving attempt 2-3 साल से seriously, so थोड़ा expectation था, and finally I got the rank 56 and IAS जो सब desire करते हैं. and तो दिस वॉज माई ओवरऑल जर्नी एंड लिटिल बैकग्राउंड एंड मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट. नाउ आई कैन गो ऑन टू सेपरेट GS1, GS2, GS3, GS4 आंसर राइटिंग. तो going part by part, I think 3 parts which everybody says are very important in the mains written paper is essay paper, your ethics paper GS4, and your optional paper. These are really high scoring and make or break exams. तो essay and ये ethics जो था वो मेरा एक high point मैं मानता था, and GS1 में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे 2019 में. तो इन तीनों की स्ट्रैटेजीज़ थोड़ी आपको बेटर आप रख सकते हैं अपने पास, कुछ अगर आपको लग रहा है इसमें से वैल्यूबल. तो ऐसे में मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क कंटेंट पे भी काम कर लूँ, मैं अपने कोट्स एक अलग से रख लूँ. कहीं मार्केट में कोई कोट्स का बुक है, या ऑनलाइन मुझे कुछ सर्च करना है, कहीं रिपोजिटरी है, उससे मैं रख लूँ, और प्लस ऐड करते जाऊँ, कहीं न्यूज़पेपर में आ रहा है या कहीं कुछ मुझे कोई बुक से पता चल रहा है. एंड मैंने ऐसे का ये एक कोट्स का अलग बना लिया, एक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लाइंस का अच्छा बना लिया. एंड फिर मल्टीपल जो टॉपिक्स होते हैं हमारे कोर टॉपिक्स होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, सोशल मीडिया, न्यू टेक्नोलॉजीज़, या कुछ ट्रेंड में चल रहा है जैसे ग्लोबलाइजेशन या रिवर्स ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन 4.0, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे करके, या AI के ऊपर, वुमेन के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे करके मैंने ब्रॉड बहुत सारे टॉपिक्स बना लिए, 15-20 टॉपिक्स. एंड उस पर जितना कंटेंट में अच्छा कंटेंट रख सकता था, जितना लास्ट टाइम में रिवाइज हो सकता है, उतना मैंने ट्राई किया उसको वहाँ पे बिल्ड करना, एंड उसको रिप्रोड्यूस करना अपने टेस्ट सीरीज़ में, एंड फिर फाइनली एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना. एंड 2019 में 2018 में मेरा essay का स्कोर अच्छा था, 136 उस ईयर की मार्किंग के हिसाब से. 2019 में स्कोर डिप्ड, एंड even though I practiced साल भर में every week I gave a paper and got it checked by some of the other person or some teacher. And 2020 में my essay went well. मैंने जो भी कंटेंट पे काम किया था वो थोड़ा काम आया, काफ़ी काम आया. इनफैक्ट जो मेरा पेपर जो essay
2 होता है जो ऐसे सेकंड पार्ट होता है, उसमें मैंने वुमेन वाला टॉपिक लिया था, पेट्रियार्की वाला, एंड उसमें मेरा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आई रेड अ बुक इंडिया शास्त्रा बाय शशि थरूर एंड विच वॉज रिकमेंडेड टू बी बाय अ सीनियर, एंड उसमें एक वुमेन का चैप्टर है. सो शशि थरूर सर ब्रिलियंटली राइट्स, इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड कंक्लूड्स द टॉपिक, एंड दोनों जैसे हम बोलते हैं एक आइडियल ऐसे होता है जिसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिंक हो जाता है. तो आई यूज्ड दैट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड इट केम आउट रियली वेल इन फाइनल एग्जाम में, एंड आई वाज रियली सैटिस्फाइड. तो उससे मुझे लगता है ऐसे अच्छा गया होगा. एंड तो ब्रॉडली ऐसे की मेरी ये स्ट्रैटेजी थी. मैंने कंटेंट पे काम किया फर्स्ट, टेस्ट्स बहुत सारे दिए, उसमें प्रैक्टिस में मैंने कमी नहीं छोड़ी, चाहे मेरा 3rd अटैम्प्ट था चाहे 2nd अटैम्प्ट था. मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और चेक करवाया था लोगों से, एंड कॉन्स्टेंटली फीडबैक पे वर्क किया. एंड थर्डली कुछ पंच लाइन्स होती हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बताया, इट वाज अ स्टोरी ऑफ सम कर्नाटिक म्यूज़िक का कि एक जो मेट्रियार्क हैं तमिलनाडु में, उनसे मैंने स्टार्ट किया था तमिलनाडु टाउन पे, और उससे ही एंड किया था मैंने पेट्रियार्की का टॉपिक. एंड जो फर्स्ट टॉपिक था मैंने उससे स्टार्ट किया था अपनी भगवद गीता का एक कोट से कि नाउ आई एम बिकम डेथ, एंड एंड किया था मैंने एक संस्कृत का एक वो है, बट आई रोट इट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन्ड इट इन अनदर ब्रैकेट, उससे मैंने एंड किया था. तो ये दोनों मुझे लगता है इस बार ऐसे में वर्क कर गया होगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया होगा. दिस वाज माय एसे का स्ट्रैटेजी. GS1 में मेरा स्कोर लास्ट ईयर 111 था. इस साल मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं जा पाया, नॉट बिकॉज मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था, मेरा लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत टाइम क्रंच में मैंने जल्दी लिखा था, तो इसलिए ही मैं थोड़ा इतना होपफुल भी नहीं था पेपर के लिए, मेरे फाइनल रिजल्ट के लिए, बिकॉज GS1 मेरा इतना अच्छा नहीं गया, विच वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. अदरवाइज GS1 में मेरा यही स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं कंटेंट को किंग मानूं, बिकॉज GS1 इज़ ऑल अबाउट योर फैक्ट्स, स्टैटिक्स, डेटा, योर मैप्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसका जो सिलेबस है वो हिस्ट्री बेस्ड है, वो सोसाइटी और जोग्राफी बेस्ड है. तो मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स आपको याद करना, अलग अलग चीज़ें, पॉइंटर्स कंसाइज फॉर्म में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका एक कंटेंट प्रिपेयर्ड होना, जेनरिक एंड थोड़ा थीम बेस्ड, डिकॉलोनाइजेशन पे, कॉलोनाइजेशन पे, वर्ल्ड वॉर्स पे, डिफरेंट थोड़ा रूलर्स हो गए, नेपोलियन का टाइम के, तो इन सब पे थोड़ा अलग अलग प्रिपेयर तो करते हो, एंड जेनरिक थोड़ा प्रिपेयर करते हो. एंड यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन योर सोसाइटी ऑल्सो टॉपिक, विच इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग रिसेंटली, और इसके नंबर्स बढ़ गए हैं सोसाइटी के एलोकेशन. तो सोसाइटी में यू कैन राइट वेरी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स एंड यूनिक पॉइंट्स जो आपको टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स में मिल जाते हैं या आपको कोई कोचिंग में मिल जाते हैं. तो दैट आई डिड. जैसे मुझे किसी ने 2018 में मेरा GS1 वॉज नॉट रियली गुड, सोसाइटी अच्छा नहीं गया था मेरा, मैंने बहुत जेनरिक आंसर्स लिखे थे. फिर somebody recommended me Vision IAS का सोसाइटी के classes, and I did those 11-12 classes, and that was really good in terms of content, and that helped me a lot. और उससे मेरा GS1 का कंटेंट इम्प्रूव हुआ, और मेरा 2019 का स्कोर इवेंचुअली इम्प्रूव हुआ, इन विच सोसाइटी डेफिनेटली हैड अ रोल टू प्ले. एंड जोग्राफी वगैरह जो भी है, या इन जनरल हिस्ट्री के वर्ल्ड मैप इधर उधर, तो इन सब में मैंने वैल्यू ऐड में हमेशा कोशिश करी कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का था, लास्ट टाइम भी 2019 में क्वेश्चन था अपना कैसे अपना जो स्कल्पचर है, गांधारा आर्ट है, स्कल्पचर है, वहाँ पे भी मैंने गांधारा मैप पे बना के डिपिक्ट किया था. इस साल भी आई रिपीटेड दैट. पाला एम्पायर पे सेकंड क्वेश्चन था 10 मार्क्स का. आई मेड अ वेरी स्मॉल मैप एक साइड में, क्योंकि 10 मार्क्स में यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मच टाइम एंड स्पेस ऑन अ मैप. सो आई जस्ट हैड अ ब्रीफ आउटलाइन इंडिया का ईस्टर्न पार्ट का, एंड उसमें पाला एम्पायर मैंने दिखा दिया था कि ये पाला एम्पायर था और ये एक्सपैंड कर रहा था उस टाइम पे, just to tell the examiner that I know what the question implies, and I know the crux of the question. And तो GS1 में content is very important, which I worked upon. एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करना, प्लस उसमें ऐड ऑन करना थ्रू टेस्ट सीरीज़ या वैल्यू ऐड मैप्स के थ्रू, या फ्लो चार्ट सोसाइटी में कभी काम आ जाता है वगैरह. एंड फ्लो चार्ट्स वहाँ पे भी काम आते हैं. जैसे इस साल मेरे लास्ट 3 क्वेश्चन में मैं भाग रहा था, बट मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू जल्दी जितना मैं डिपिक्ट कर सकता था
जल्दी से ऐसे गोला करके 1 2 3 4 करके 5-6 पॉइंट्स इधर लिख दिए, 5-6 पॉइंट्स उस पेज पे लिख दिए, जस्ट सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है उससे थोड़ा। तो मेरा पेपर खाली नहीं गया था, 2-2 पेजेस मैंने भर दिए होंगे उस फ्लो चार्ट से लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में, तो उससे मुझे लगता है थोड़ा डिसेंटली मेरे को पेनलाइज इतना ज़्यादा नहीं किया होगा। दिस वॉज माई GS1 का स्ट्रैटेजी। GS2 की स्ट्रैटेजी मेरी इसलिए मुझे बेनिफिट किया बिकॉज माई ऑप्शनल वॉज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम वी यूजली कवर ऑल दैट पॉलिटी वाला पोर्शन, एंड अब हमें बहुत सारे इन डेप्थ थोड़ा चीज़ें पता होती हैं, तो दैट हेल्प मी, वो मेजरली उससे कवर हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड वो भी मेरा ऑप्शनल से कवर हो गया था। इसमें मैंने बस डिफ्रेंशिएट यही किया, जो सीनियर से सुनते हैं कि बहुत स्पेसिफिक नॉलेज मत दो यहाँ पे GS2 में, स्पेशलिस्ट नॉलेज नहीं चाहिए यहाँ पे, जनरलिस्ट नॉलेज चाहिए एंड वेराइटी डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स चाहिए। तो आई ट्राइड टू इम्प्रूव ऑन दिस, एंड IR में मैंने रादर दैन अपने ऑप्शनल का कंटेंट वो भी पढ़ा, बट मेजरली मैंने फोकस किया एग्ज़ाम से पहले, GS2 के एग्ज़ाम से पहले मैं विजन टाइप का जेनरिक थोड़ा जनरल कंटेंट पढ़ के जाऊँ IR पे और पॉलिटी पे, ज़्यादा आर्टिकल्स लिखूँ, ज़्यादा ये करूँ, इन डेप्थ पे ज़्यादा ना जाऊँ। तो दिस मस्ट हैव हेल्प्ड, एंड ऑप्शनल ने डेफिनेटली उसका कंटेंट हेल्प करता है। 1-2 क्वेश्चंस कुछ यूनिक आ जाते हैं, जैसे इस बार GS2 में क्वेश्चन आया था कैसे UK का जुडिशल सिस्टम और इंडिया का जुडिशल सिस्टम वेरीड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसमें थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल गया था ऑप्शनल का, एंड थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में एक बार बीच में आ रहा था UK में कैसे इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे काम हो रहा है, तो मैंने उसको आर्टिकल 21 अपना MC मेहता केस से लिंक कर दिया। तो थोड़ा बहुत ये करंट अफेयर्स भी काम आ गए मुझे ऐसे अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस में, एंड डेफिनेटली ऑप्शनल ने तो सपोर्ट किया GS2 में। बाकी GS2 में एक्स्ट्रा गवर्नेंस वाला पोर्शन होता है, दैट पोर्शन मैंने उसमें अपना जो हमारी ARC होती है, सेकेंड ARC, वो E-गवर्नेंस वाला पोर्शन उससे कवर हो जाता है, एंड वो GS4 में भी E-गवर्नेंस हेल्प करता है। तो मैंने ARC पढ़ ली थी, विच इज़ अ मस्ट रीड बिकॉज वो 2 पेपर्स में हेल्प करती है ARC, E-गवर्नेंस वाली। एंड बाकी उसके अलावा सिटीजन चार्टर वाला भी मैंने पढ़ लिया था बिकॉज दैट्स अ डायरेक्ट टॉपिक। एंड SHGs NGOs आर रिपीटेड क्वेश्चंस। इस बार भी 2020 में SHG माइक्रो क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने वो सब अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। उस पर मेरे पास फैक्ट्स थे, थोड़े स्पेसिफिक एग्जांपल्स थे SHGs के, माइक्रो क्रेडिट के, तो वो सब लिख दिया था। एंड सो GS2 में आप काफ़ी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हो, काफ़ी एक्सपेक्टेड रहता है थोड़ा SHGs पे क्वेश्चन, NGOs पे क्वेश्चन, IR में बड़े बड़े P5 जो पावर्स है हमारी, US रशिया, इस बार US रशिया पूछा, लास्ट टाइम US रशिया एंड इंडिया जो ट्रॉइका है, लास्ट टाइम हमसे इंडिया जापान वाला कुछ पूछ लिया था, इंडिया US पूछ लिया था। तो ये जो P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, नॉट जापान बट इट्स अ मेजर कंट्री, P5 कंट्री के अंदर US आ गया, UK आ गया, तो फ्रांस आ गया, चाइना आ गया, रशिया आ गया, इन सब कंट्रीज़ के साथ आप रिलेशंस इंडिया के हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसको। और जो मेजर बॉडीज़ हैं जैसे WHO बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था सबने इस बार, तो वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ गया था कि WHO को इवैल्यूएट करो उसकी फंक्शनिंग्स को, तो वो हेल्प कर गया था। तो GS2 का स्ट्रैटेजी इज़ दिस, एंड GS3 में मूव ऑन करते हैं। GS3 I might not be the right person as of yet because last year 2019 में unexpectedly my paper went well but I got 76 marks I guess, although सबके कम नंबर आए थे उस टाइम, बट तो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट नहीं है, बट व्हाट आई ट्राइड टू इम्प्रूव अपॉन लास्ट ईयर वाज कि कंटेंट थोड़ा GS3 के हिसाब से लिखूँ, ज़्यादा GS1 के टाइप का ना लिखूँ, GS2 के टाइप का नहीं, GS3 टाइप मतलब ज़्यादा मैप्स, ज़्यादा फ्लो चार्ट, ज़्यादा नंबर्स, लाइक इकोनॉमिक्स में नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमिक सर्वे कोट करना, IMF की रिपोर्ट कोट करना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोट करना, इंट्रोडक्शन में ही अच्छा इंट्रोडक्शन देना विद अ रिपोर्ट, विद अ नंबर, विद अ हार्ड फैक्ट, और ये सब करके एंड में गवर्नमेंट की स्कीम्स हमेशा होती हैं, तो वो सब करके थोड़ा इनरिच्ड इकोनॉमी का पेपर लगे थोड़ा वैसा, और लास्ट में कोई कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, कोई इकोनॉमी की कमेटी बनती रहती है बहुत सारी, वो सब लिख दी। ये इकोनॉमी का पोर्शन तो मेजर है ही, इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्पेसिफिक स्टडी कर लिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट होती है NDMA की, वो सब पढ़ ली जेनेरिक सजेशंस के लिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ARC है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अभी, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे फिर आप स्पेसिफिक स्टडी कर सकते हो। आप स्टॉक डायग्राम्स होते हैं आपके पास, डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है, आप वो 3-4 क्वेश्चंस जो भी पूछते हैं पेपर में कहीं ना कहीं आप उसको डाल सकते हो। कुछ अच्छी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन लाइन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड टॉपिक्स लाइक दीज, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी। अब इतना स्पेसिफिक यूपीएससी हैज़ स्पेसिफाइड कि ये टॉपिक्स हैं, सो यू कैन प्रिपेयर वेरी गुड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड डायग्राम्स, which you must do, people, because people who will compete with you will do that. And और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इन सब में आप नंबर्स डालो, स्कीम्स डालो, इसको जितना ब्रॉड कर सकते हो उतना ब्रॉड करो, दैट इज़ द की। बाकी GS3 में और कौन सा पोर्शन है हमारा, सिक्योरिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं एंड उसके क्वेश्चन 15 मार्कर्स में भी रहते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस भी, एंड उस पर कंटेंट भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड करंट ओरिएंटेड रहता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है इसको पढ़ना और प्रिडिक्ट भी करना क्वेश्चंस। तो GS3 में ये है। GS1, 2, 3 का ये है कि आई यूज़ टू मेक अ क्वेश्चन बैंक अलग से, एंड उस क्वेश्चन बैंक में मैं क्वेश्चंस, जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा होता था तो मेरे हंच से, मेरे गट से मैं लिखते रहता था वहाँ पे क्वेश्चंस कि दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी। एंड उसमें से कई बार थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चंस क्लिक भी करे थे 2019 में भी। जैसे मैंने GS1 में आर्कटिक प्लान चल रहा था चाइना का, आर्कटिक सिल्क रूट, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि आर्कटिक एरिया पे बहुत न्यूज़ आ रही है, तो मैंने एक आर्कटिक को रिसोर्स और जोग्राफी एंगल से प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो आई प्रिपेयर्ड दैट, वो आंसर वो आ गया था डायरेक्टली। वैसे गांधी जी का जो हमारा एनिवर्सरी अभी 150th हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस पे क्वेश्चंस और मैंने थोड़े प्रीएम्प्ट कर लिए थे, वो क्वेश्चंस आ गए थे, हाउ इज़ गांधी जीज लेसन्स इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टुडे, तो वो वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। एंड ऐसे ही, सो द होल पॉइंट इज़ यू कैन मेक अ क्वेश्चन बैंक, यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट। सो थोड़ा एक डायनेमिक भी रहता है, तुम्हें इंटरेस्ट भी आता है, तो जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो तुम्हें पता होता है कि यू कैन गेट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, उससे थोड़ा फोकस भी रहता है न्यूज़पेपर। GS1, 2, 3 में एक और कॉमन पॉइंट ये है कि यू हैव टू value add all the time, you have to watch out for anything that can set your answer apart. It can be a diagram, it can be a fact, a report, any unique thing you see in the newspaper जिससे तुम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कर सकते हो, या गवर्नमेंट का कोई स्कीम है। और फॉरेन एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस बार जोग्राफी में क्वेश्चन था GS1 का कि फ्लड हो रही है मेगा सिटीज़ में। So I fully used all these examples, foreign examples जो हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने जापान का अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम लिखा वहाँ पे सजेशन में, मैंने बीजिंग का स्पॉन्ज सिटीज़ जो हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, मैंने वो भी लिखा वहाँ पे। तो मल्टीपल सजेशंस यू कैन राइट देयर, और वहाँ पे तो डायरेक्टली पूछा भी था सजेशंस दो, तो इट्स अ गोल्ड माइन अगर आप यूनिक पॉइंट्स लेके रखोगे और ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल फॉरेन के रख के रखोगे, या कमिटीज़ या गवर्नमेंट जो भी कुछ यूनिक कर रही है। एफॉरेस्टेशन में सपोज आपने मियावाकी मेथड लिख दिया विच इज़ वेरी मच इन न्यूज़ अभी, तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो वहाँ पे और डायरेक्टली कोट कर सकते हो। जैसे सपोज रिपोर्ट कोट कर दिया आपने, NDMA ने ऐसे बोला है या किसी कमिटी ने ऐसे बोला है। सो दिस इज़ हाउ यू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स न्यूज़ में, हाउ यू वर्क ऑन वैल्यू एड। ऑलवेज कीप एन आई आउट फॉर वैल्यू एड इन्फॉर्मेशन। कुछ भी जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो सपोज आर्टिकल इतना अच्छा नहीं है बट उसका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कैन बी गुड, सो वो मैं करता था। मैं न्यूज़पेपर कई बार ऑनलाइन पढ़ता था जब भी मुझे नोट्स बनाने वाला फेज़ होता था मेंस में, एंड एवरनोट पे मेरे नोट्स है सारे, तो मैं कई बार डायरेक्टली क्लिप लेके या उसको कॉपी पेस्ट करके अपना एवरनोट पे ऐसे में डाल देता था, इंट्रोडक्शन ऐसा, ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है, वहाँ पे डाल दो। या एक अलग से मैंने नोट बना लिया था फैक्ट्स के ऊपर, वहाँ पे फैक्ट डाल दिया सीधा। एक अलग से नोट बना लिया कमिटीज़ के ऊपर, सजेशंस, वे फॉरवर्ड्स के ऊपर। तो वहाँ पे आप बहुत यूपीएससी आई थिंक GS में इन जनरल तो शायद नहीं ऐसे वैसे में, बट यही है कि इट्स द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन योर ह्यूज जो हमारा सिलेबस है और जो लोगों को लगता है एक ओशन है। आई थिंक यू कैन इंटेलिजेंटली वर्क, यू कैन ब्रेक इट डाउन, एंड जब आप ब्रेक डाउन करोगे वो आपको डाइजेस्ट करना भी कंटेंट इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए चीज़ पढ़ रहे हो रादर दैन एक अननोन बड़ा एक
बड़े एक ब्लैक होल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता नहीं है ये फैक्ट कहाँ काम आएगा। रादर दैन दैट आप नोटबुक आपने जो भी है एवरनोट पे या ऑफलाइन जहाँ पे भी है, मेरा ऑनलाइन था, तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अलग कर लिया, जोग्राफी को अलग कर लिया, सोसाइटी को अलग कर लिया, उसके अंदर भी सब डिविजन्स कर लिए। जोग्राफी के अंदर भी रिसोर्सेज का एक सब डिवीजन कर लिया, जोग्राफी के अंदर सेलियन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी का एक अलग नोट कर लिया, अर्थक्वेक्स का अलग नोट कर लिया, वोल्केनोज का अलग नोट कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी आपको स्लाइटेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वैल्यू ऐड में आपको वैल्यू ऐड की तरह आपको मिलेगी, वो आप डालते रहोगे, आपको पता रहेगा कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और एक सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, सेंस ऑफ प्रोग्रेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में लोग स्टैग्नेट फील करते हैं, ये आपको सही लगेगा। आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो भी है, मतलब वॉट एवर टॉपिक यू चूज़, आपको लगेगा कि आपका कंटेंट बेटर हुआ है या इस जगह आपने ख़राब किया है कोई पेपर में, आपको पता होगा स्पेसिफिक्स। सो वर्क ऑन स्पेसिफिक्स रादर दैन एक मोनोलिथ की तरह यूपीएससी को ट्रीट करना और पेपर देना, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड यू विल ऑलवेज बी एक्साइटेड टू इम्प्रूव एंड वर्क अपॉन योर वीकनेसेस या वर्क अपॉन योर डेफिसिट्स। तो ये बेसिकली GS 1, 2, 3 है। GS 4 थोड़ा अलग है इन सबसे। GS 4 के लिए आपको केस स्टडीज़ अलग है आपका, और आपका जो स्टैटिक वाला केस पार्ट ए होता है उसका, वो बिल्कुल अलग है। तो एक तो सभी बोलते हैं इसमें आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें जो भी आपके सिलेबस के मेजर पॉइंट्स हैं वो बना लीजिए, फिर 3 उसके कॉलम्स बना के आपने हर चीज़ पे आपने पर्सनल एग्जाम्पल लिख दिया, वर्ल्ड का कुछ अच्छा एग्जाम्पल लिख दिया। एंड इसमें आप बहुत जेनेरिक मत लिखना कि नेल्सन मंडेला एंड ये सब, ये वाले एग्जाम्पल्स आर रियली गुड बट दे आर वेरी exhaustively used by so many people, like 90% of the people for short of time or imagination will use Mandela quotes or will use normal quotes। आप ट्राई करो कि आप थोड़ा हट के जाओ। मतलब मॉक्स में भी मैंने सपोज एक बार मैंने शेक्सपियर का कोट से चालू कर दिया था, थोड़ा बड़ा कोट था, तो आई वॉज गिवन एक्सेलेंट रिमार्क ऑन दैट। सो थ्रू सच रिमार्क्स आई रियलाइज कि एग्जामिनर ऑलवेज लाइक समथिंग यूनिक, समथिंग फैसिनेटिंग फ्रॉम यू। तो वो वाली चीज़ मैंने ट्राई किया कि मैं GS मतलब कहीं भी उसको यूज़ करूं। और GS 4 में जो हमारा स्टैटिक वाला केस ए पार्ट है, उसके लिए मैंने क्या किया था, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस पे, उसके ऊपर आप 2-2 पेज बना लो। उसके ऊपर इंटेग्रिटी है या पब्लिक वैल्यूज़ है, 2-3 पेज जो भी है, सब डिविजन जितने भी हो रहे हैं, आप उस पर पेजेस बना लो, अच्छे से कंटेंट उसका प्रिपेयर कर लो। फिर आपको मेनली ऑन द स्पॉट सोचना, और जो आपने कंटेंट बनाया है उस जेनेरिक कंटेंट को आपको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही टॉपिक में डालने का अगर आ गया, वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन है और आपको सेकेंड पार्ट में कोई और क्वेश्चन है, आपको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो आप उसको, दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑन द स्पॉट सोचने को आप टेस्ट सीरीज दे के आपका काफ़ी होन होता है एथिक्स में स्किल, बिकॉज एथिक्स एक तो बहुत लेंदी पेपर है, तो आप जितना उसको अपने कंटेंट को उतारने की कोशिश करोगे अपने आंसर्स में, उतना बेटर है, क्योंकि फाइनली आपको पेपर कंप्लीट करना है। एथिक्स में इट्स अ वेरी लेंदी पेपर। एंड मैंने इस बार जो डिकोड एथिक्स है वो भी पढ़ी थी एंड उसके भी कंटेंट यूज़ करने की कोशिश करी थी, बट वो थोड़ा ही कर पाया था। अभी 2021 का मैं पेपर देता, उसके लिए मैंने और पढ़ लिया था वो बुक, बट काम नहीं आई, मतलब काम नहीं आई इन द सेंस फॉर्चुनेटली काम नहीं आई। एंड फिर GS 4 में आप जो आपका केस जो पार्ट बी रहता है, पार्ट बी में आप उसको मोनोटोनस मत बनाना, मतलब कि आपने एक ही स्टाइल बना लिया इंट्रोडक्शन करने का और कंक्लूड करने का, एक ही मोनोटोनस की फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहे हो, फिर आप वो कर रहे हो, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बट आप उसको 5-6 केस स्टडीज़ होती हैं, आप रिपीट मत करना, विच विल लुक वेरी प्रिपेयर्ड एंड वेरी रस्टी टू द एग्जामिनर। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी कॉपी भी देखोगे, आप सेम स्ट्रक्चर आपके आंसर का स्टार्टिंग में, दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द स्टेक होल्डर्स, दीज आर द थिंग्स आई विल डू, ऐसे मत करो। थोड़ा थोड़ा उसमें आइट्रेशन कर लो एंड उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो बिफोर हैंड कि मेरे 3 स्ट्रैटेजी रहेगी इंट्रोडक्शन करने की। एक में मैं फैक्ट से करूँगा, एक में मैं करंट अफेयर से रिलेट कर दूंगा, एक में मैं डायग्राम या फ्लो चार्ट से या कहीं किसी और चीज़ को यूनिकली लेके आऊँगा या टेबल से एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ ऐसे करोगे तो एग्जामिनर वो जो 4-4 बड़े बड़े पेजेस पढ़ता है एक एक केस पे, वो इंटरेस्टेड रहेगा आपको पढ़ने में। नहीं तो बार बार इंट्रोडक्शन आपका सेम रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पढ़ना, बोरियत आ जाती है। तो आप वो मत करना, रिपीट मत करना स्ट्रैटेजी, थोड़ा थोड़ा ऑल्ट्रेशंस कर लो और प्रिपेयर कर लो उसको पहले से। एंड
एथिक्स में आप जितना मतलब यूनिक पर्सपेक्टिव, यूनिक एग्जाम्पल्स लिखोगे, जितना पर्सनली कन्विंसिंग आंसर्स लिखोगे, आप कोई भी आंसर्स लिखो बट किसी को भी एग्जाम्पल को, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करो, आप कन्विंसिंगली एक्सप्लेन करो, बिकॉज इट्स एन एथिक्स पेपर। वहाँ पे कंटेंट से ज़्यादा ये है कि आपको वो ग्रास्प हुआ एंड यू आर एन एथिकल पर्सन, वो दिख रहा है पेपर पे। तो वो तब आएगा जब आप एक कन्विंसिंग, यूनिक एग्जाम्पल्स, यूनिक पॉइंट्स लिख रहे हो और उसको पूरा इंटरेस्टिंग बना रहे हो उसको आप। वहाँ पे मैं तो बहुत ट्राई करता था कि एथिक्स में केस जो अपना पार्ट ए होता है, वहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई डायग्राम बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, एंड आप इंटेग्रिटी है उस पर डायग्राम बना लो। इन्फ्लुएंस के ऊपर एरिस्टोटल का ईथोस, लोगोस, पैथोस करके वो ट्रायंगल बना दिया। एथिक्स और लॉ पे क्वेश्चन है तो आपने वेन डायग्राम बना दिया, उसमें बीच में दिखा दिया आपने वेन डायग्राम से एथिक्स एंड लॉ का जो इंटरसेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। और इस बार मैंने एथिक्स में बहुत यूनिक ट्राई ये किया कि मैंने फोर्सफुली आउट ऑफ द वे जाके मैंने कोट्स को डाला वहाँ पे, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया थ्रू मल्टीपल टेस्ट कि ऐसा कोई बना बनाया क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका बना बनाए नोट्स डायरेक्टली डल जाएंगे। यू हैव टू समहाउ द अदर उस लिमिटेड फ्रेम में आपको वो वैल्यू ऐड दिखाना है, अपना डालना है, वही टाइम है आपके पास, मॉक्स में डाल के फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू जस्ट सी अ क्वेश्चन एंड जस्ट मेक दैट डायग्राम, राइट दैट कोड फर्स्ट ऑफ योर माइंड। सो उसके लिए आप प्रिपेयर करके जाओ कि ये कोड इस टॉपिक पे डल सकता है, ये डायग्राम इस टॉपिक पे डल सकता है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ये एक एग्जांपल इस टॉपिक पे डल सकता है। तो फाइनली मैंने इस बार ये काफ़ी रेप्लिकेट हो पाया एंड मैंने बहुत सारे आंसर्स अपने स्टार्टिंग के 3, 4, 5 आंसर्स, कभी कलाम के कोट से, कभी किसी के कोट से चालू किए, कभी किसी के एग्जाम्पल से चालू किए, सॉक्रेट से चालू कर दिया। वो पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो होते हैं हमारे। तो वो एथिक्स में डिफरेंशिएट जितना आंसर को करोगे, जितना यूनिक बनाओगे, दैट विल हेल्प। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एथिक्स में यही है कि आप पेपर कंप्लीट करो उसका, बिकॉज हमेशा हर साल पेपर लेंदी आता है एंड आपको टो पे सोचना होता है, ऑफ योर माइंड सोचना होता है। तो कंप्लीट करने पे आपका फोकस जाना चाहिए विथ अबव एवरेज एंड गुड आंसर्स इन मोस्ट। तो ये GS 1, 2, 3, 4 एंड essay का मेजरली मेरा स्ट्रैटेजी था।